रोज हम भगवद गीता से श्लोक पढ़ते हैं, तो आज भी हम एक श्लोक पढ़ेंगे. लेट्स सी व्हाट वी हैव फॉर यू इन भगवद गीता. श्लोक 17 फ्रॉम चैप्टर 8, अटेनिंग द सुप्रीम. सहस्रयुगा परयन्ताम् अहर्यद ब्रह्मणो विदु रात्रिं योगा सहस्रन्तं तेहोरात्रा विदो जना. By human calculation, 1,000 ages taken together from the duration of Brahma's one day, and such also is the duration of his one night. तो ह्यूमन कैलकुलेशन मतलब हम लोग जो कैलकुलेशन करते हैं उस हिसाब से 1,000 एजेस टेकन टुगेदर, बहुत सारे युग को एक साथ करने पे ब्रह्मदेव का एक दिन होता है. एंड सच ऑल्सो इज़ द ड्यूरेशन ऑफ हिज नाइट. बहुत सारे युग हमारा एक होने के बाद में उनका एक रात्रि होता है. तो वहाँ पे ब्रह्मलोक में दिन और रात का टाइमिंग बहुत अलग है दुनिया से. Duration of material universe is limited. It is manifested in cycles of kalpas. A kalpa is a day of Brahma, and one day of Brahma consists of 1,000 cycles of 4 yogas or ages: Satya, Treta, Dwapara and Kali. The cycle of Satya is characterized by virtue, wisdom and religion, there being practically no ignorance and vice. And the yogas last 1728,000 years. The Treta Yoga vice is introduced and the yoga lasted 1296,000 years. In the Dwapar Yoga there is a even greater decline in virtue and religion vice decreasing, and it lasted for 864,000 years. And finally the Kali Yoga, the yoga we have now been experiencing over the past 5,000 years. There is one abundance of strife, ignorance, irreligion and vice, virtue, true virtue being practically non-existent, and the yoga lasts for 432,000 years. यानी कि यहाँ पे बहुत सारे युग को मिला करके एक कल्प होता है, और ब्रह्मलोक में एक कल्प मतलब हमारे यहाँ पे एक कल्प का समान एक दिन होता है. ठीक है. सो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हमारा जो धीरे धीरे ना टाइम कम होता जा रहा है. इन कली योगा वाइज डिक्रीजेस टू सच अ पॉइंट दैट at the termination of the yoga, the Supreme Lord himself appears as Kalki avatar, vanquishes the demons, saves his devotees and commences another Satya Yoga. Then the process is set rolling again. These 4 yogas rotating 1,000 times comprise one day of Brahma. बहुत सारे योग मल्टीपल टाइम्स जब रोटेट कर जाता है तो ब्रह्म लोक में एक दिन होता है. The same number comprise one night. Brahma lives 100 of such years and then dies. These 100 years by earth calculation is total of 311 trillion and 40 billion earth years. By this calculation, the life of Brahma seems fantastic and interminable, but from the viewpoint of eternity, it is as brief as a lightning flash. मतलब ये सुन के लगेगा कि ब्रह्मलोक का उम्र तो बहुत लंबा है. कितने सारे कल्प से उनका एक दिन होता है, कितने सारे कल्प से एक रात होता है, ऐसे ही बहुत सारे साल वो ज़िंदा रहते हैं. सो इट्स ह्यूज. ऐसे ही बहुत सारे 1,000 साल वो ज़िंदा रहते हैं. लेकिन ये अगर हम इटर्निटी के व्यू पॉइंट में देखें तो इटर्निटी इससे भी इतना लंबा है कि ये एक लाइट फ्लैश जैसा छोटा टाइम पीरियड है, जो कि इतना लंबा है एक्चुअल में एक छोटा लाइटनिंग फ्लैश जैसा प्रतीत होता है. इन द कैजुअल ओशन देयर आर, उसमें सोचो कि हम ह्यूमंस के पास में कुछ साल है, 100 साल ही मान लो, या 70 साल या 80 साल, 90 साल, 60 साल, कितना कम टाइम हम जीते होंगे. उसमें भी एनिमल्स कितने और भी कम टाइम, मतलब उनका तो फिर नेग्लिजिबल हो गया. So in the casual ocean there are innumerable Brahmas rising and disappearing like bubbles in the Atlantic. Brahma and his creation are all part of the material universe, and therefore they are in constant flux. In the material universe, not even Brahma is free from the process of birth, old age, disease and death. Brahma, however, is directly engaged in the service of the Supreme Lord in the management of this universe.
Therefore he at once attains liberation, क्योंकि ब्रह्मा इस पूरे ब्रह्मांड को चला रहा है, टेक केयर कर रहा है, इसलिए तुरंत उसको मुक्ति मिल जाती है। ऐसे मल्टीपल ब्रह्मास आ रहे जा रहे और सब मुक्त होते जा रहे। एलिवेटेड सन्यासीज आर प्रोमोटेड टू ब्रह्मास पर्टिकुलर प्लैनेट ब्रह्मलोक, विच इज द हाइस्ट प्लैनेट इन द मटीरियल यूनिवर्स and which survives all the heavenly planets in the upper strata of the planetary system. But in due course Brahma and all the inhabitants of Brahmalok are subjected to death according to the law of material nature. तो ब्रह्मलोक में भी वहाँ पे जो उच्च स्तर के ऋषि मुनियाँ होते हैं वो ब्रह्मलोक में चले जाते हैं और एक टाइम के बाद में उन सब की मृत्यु हो जाती है लॉ ऑफ नेचर के जैसा। बट कितना लंबा टाइम रहते हैं उसमें भी उसको लाइट फ्लैश के जैसा बोला जा रहा है, मतलब एक्चुअल टाइम कितना बड़ा या कितना लंबा होगा सोचो। सो ये हमको एक नॉलेज दिया गया, कैलकुलेशन दिया गया। दिस इज़ व्हाट वी लर्न कि हम जो अपने आप को बहुत बड़ा समझते हैं ना, और हमको लगता है हमारे पास तो बहुत टाइम है, हमारे पास एक्चुअल में कहीं पे टाइम है ही नहीं। हमारा टाइम बहुत छोटा और बहुत ज़्यादा नेग्लिजिबल है, ठीक है। जो इतना लंबा टाइम को किसी कुछ कल्प को भी छोटा फ्लैश जैसे सोचा जा रहा है, तो फिर सोचो हमारा टाइम कितना छोटा कितना कम होगा। सो दिस इज़ व्हाट वी हैव लर्न फ्रॉम टुडे। दूसरे दिन हम और एक श्लोक को कवर करेंगे। तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे, जय श्री राम।